So, dear students, welcome to the virtual classroom of Jaffrey Academy of Modern Education. I'm your teacher of literature, Murtaza Fazli. और आज का जो लेक्चर है वो क्लास 10th जेके बोस के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे थे आबिले का जो शॉर्ट स्टोरी है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। And as you know that in earlier lectures we were talking about how Abile how an age how a senior citizen और जो कि एक ऐसी उम्र पर के पड़ाव में है उसकी एक मेंटेलिटी को समझाने की कोशिश की है गनी शेख साहब ने थ्रू डिफरेंट इंसिडेंट्स इन द स्टोरी लाइक ऑफ द बस जो उसका रुखसाना का श्रीनगर जाना एंड देन डोलमा का घर आना एंड देन और जिस तरह से उन्होंने वो किचन में वो बैरल गन को जिस तरह से उसकी रखवाली करती रही. सो दिस रिफ्लेक्ट्स द some sort of innocence and mentality of Abile, and a very this reflects that Sheikh Saab is successfully able to tell a very beautiful story in a plot related to a Ladakhi family. So we will continue from last lecture. So yeah, कुछ passages पढ़ते हैं. All grandmothers, all grandmothers, despite their varied backgrounds, are similar, particularly in their reaction to modern technology, like one of the grandmothers in our neighborhood. When she refers to an aeroplane, she switches to an honorific speech. The plane Saab has arrived. The plane Saab must be facing a lot of difficulties, and hearing it make noises, and today plane Saab was very big. They say that when another Abi saw a plane for the first time, she went to greet the plane with bundles of grasses in her basket. There is another episode associated with our Abi. She and another Abi from our community went to see a film. It was their first film and will probably be their last one. With their weak eyesight, the moving image on the screen held no more truth for them than a dream. They watched the film less and complained more of headaches and nausea. Shortly, with my elder sister's help, they understood that one of the important themes in the film was about her mother-in-law's harassment of her daughter-in-law. The next day saw both Abis sitting on the rooftops of their houses spewing venom on the mother-in-law of the world. God save us from their wrath. Incidentally, a girl from our neighborhood had been married into a household where she did not get along with her mother-in-law. So इसी तरह से जो ये किस्से हैं अबीले से रिलेटेड, शेख साहब इसको कहने में और थोड़े से और इस कहानी को बढ़ाते हैं और बहुत मजीद किस्से हैं. उन्हीं में से एक किस्सा ये है कि हमारी दुनिया में, या वो कहते हैं कि हमारी लद्दाखी सोसाइटी में जितनी भी बुजुर्ग औरतें हैं, दादी अम्माएं कहें, हम अपनी दादी कहें, और उनका बैकग्राउंड कैसा भी रहे, बट उनका जो रिएक्शन रहता है पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी को लेके वो तकरीबन सिमिलर ही होता है. अब शेख साहब कैसे समझाते हैं वो कहते हैं कि लाइक वन ऑफ द ग्रीन, वो एक बुजुर्ग खातून दादी अम्मा का वो एग्जाम्पल देते हैं जो उनके हमसाये में रहते हैं. तो वो कहते हैं वो क्या करती थी, वो करती ये थी कि जब भी वो किसी जहाज की तरफ देखती थी तो एक बड़ा एजाज, ऑनरिफिक स्पीच कहते हैं कि बड़ी एजाज के साथ किसी के साथ पेश आना या किसी को पुकारना. सो सिमिलरली शी प्लेन जो जहाज है वो उसके साथ यही कहती थी कि द प्लेन साहब हैज अराइव्ड. आज प्लेन साहब आ गए हैं. और आज प्लेन साहब को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा होगा. और जब प्लेन ज्यादा आवाजें करता है, और जब कभी कभार ये कहते थे आज जो प्लेन साहब थे वो बहुत बड़े थे साइज में. और they saw that when another Abhi saw a plane for the first time, she went into greet plane with the bundles of gas in her basket. और ये भी किस्से कहानियां मशहूर है कि एक जो हमारी अभी थी, उन्होंने क्या किया था कि जब लद्दाख में पहली बार जहाज आया तो जहाज के सामने घास का ढेर लेके चली गई थी. So this is how he has written some passage
और एक किस्सा ये था कि उनकी जो अभी थी या वालिदा थी, और उनकी और एक सहेली कोई थी, वो पहली बार फिल्म देखने गई लद्दाख में। तो फिल्म देखने में तो उनको कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि उनकी आंखों की बीनाई कमजोरी की वजह से कुछ ये फिल्में ख्वाब से ज्यादा देखने को नजर नहीं आता था। उनको एक ख्वाब जैसा ही लगा, रियलिटी नहीं लगी, क्योंकि जब आप उन इमेज को देख ही नहीं पाए। तो हुआ क्या कि आ, तो मेरी जो बड़ी बहन थी उनकी मदद से मेरी बड़ी बहन ने उस फिल्म की कहानी सारी उनको समझाई कि ये एक बहू और सास के बारे में है, कि जिस फिल्म में किस तरह से एक सास एक बहू पे शदीद जुल्म वगैरह करती है। तो फिर जब भी फिल्म देख के आ गई, तो हालांकि उन्हें बड़ा सर दर्द वगैरह महसूस हो रहा था, तो घर पे जाने के बाद वो क्या कह रही थी कि उनका एक परसेप्शन चेंज हो गया कि इस दुनिया की जितने भी मदर इन लॉस हैं वो बड़ी जलील होती है, और वो हमेशा अपने बहुओं पे जुल्म करती हैं, और हमें खुदा उनकी जुल्म से बचाए। तो किस्मत से ये बात ये भी हुई थी कि वहाँ पे एक लड़की थी जिसकी हाल हाल में ही शादी हुई थी, और उसकी कुछ रिश्ते, उसके कुछ ताल्लुकात अपने सास के साथ कुछ सही नहीं चल रहे थे। तो फिर उसके बाद जब भी उस फिल्म का जिक्र होता था, अभी ले जब भी कभी उस फिल्म की कहानी का जिक्र होता था, तो क्या होता था कि अभीले हमेशा मदर इन लॉज, दुनिया की सासों के बारे में क्या करती थी, बड़ा उनके खिलाफ बहुतान कहने लगती थी, ये ऐसी होती हैं वगैरह, होती है सही नहीं होती है, बड़े जालिम होती हैं। तो ऐसा चलता था। इस तरह की ये मासूमियत अबीले में थी, जो इस कहानी के जरिए बखूबी शेख साहब ने कहने की कोशिश की है। तो आगे आगे ये होता है कि जो हमारी जो पड़ोस की जो अबीले हैं, उनकी भी उम्र हमारी अभी अभी के बराबर ही की ही होगी। और शी इज़ अ फ्राइटनिंग वुमेन इन वो बड़ी ही दहशत ज़दा और बड़ी खौफजदा एक औरत है। और जब वो तंग आ जाती है किसी चीज़ से, वो बड़ी शेरनी की तरह चिल्लाने लगती है। शी हैज़ हर ओन स्टाइल ऑफ रिलेइंग ऑल मैटर्स रेंजिंग। तो उन्हें जो ये बातें कहने का या वो होती हैं, उनको किसी चीज़ पे भी जो तबसरा करने का जो उनका स्टाइल है, उनका एक अपना एक स्टाइल है, और जिसकी जो रेंज है वो सियासत से लेके जो घर घरेलू कहानियां जो आमतौर पे हमारी औरतें गॉसिप्स वगैरह करती हैं, तो जो हमसायगी में जो क्या किस्से हो रहे हैं, पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, उसको कहने का उनका एक बड़ा ही जबरदस्त एक अंदाज होता था। तो हुआ क्या कि कुछ महीनों पहले जब मैं एक अपनी सीढ़ी पे बैठा हुआ था और एक किताब पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि दो अबीलेज एक कहानी, हमारी जो दो अबीले हैं, ये कहानियां पढ़ रही हैं, कुछ कहानियां सुना रही हैं। द सेम एवरीडे टॉक्स विद विच ईयर्स वे फेमिलियर। वही बातें, वही रोजमर्रा की रिपीटिंग चीज जिससे हमारी कानों को आदतें पड़ चुकी थी, किन किन चीजों पे लोग बातें करेंगे। तो हुआ क्या, आ, तो क्या कहती है कि श्योरली इट्स एन ओमन सिग्नलिंग दैट डे ऑफ जजमेंट इज नियर। तो हमें तो लगता है भैया कि जैसे जैसे हालात लग रहे हैं, हमें लगता है कि कयामत नजदीक है। दे मस्ट हैव बीन रेफरिंग टू ए फेटल इंसिडेंट। अब मुझे लगा कि जब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि कोई हादसा हुआ है कहीं पे। और द साइमन इज डिफरेंट ऑफ टू मेन और डीमन डिसग्रेस इग्नोरमस ऑल अलेम्ड एट जस्टिफिकेटिंग ए वेल ड्रेस्ड वुमेन। ठीक है, या तो वो किसी डेथ के बारे में बता रहे हैं, हाल ही में दो लोग मर्दों की जो बात हुई हो, या किसी डीमन के बारे में, ऑल एम्ड एट जस्टिसाइजिंग ए वेल ड्रेस्ड वुमेन। तो या तो किसी औरत के बारे में किसी ने कमेंट किया हो। और जब इन दोनों के बीच में बातें हो रही थी, द नेक्स्ट डोर अभी आस्क्ड अबाउट रुखसाना। दूसरी जो सहेली थी हमारी दादी की, तो उसने फिर रुखसाना के बारे में बात की कि रुखसाना की क्या हालत है, वो ठीक है कि नहीं है। तो फिर अबीले उसको रिप्लाई देने लगे कि वो हर दैट देयर वर सीवियर फ्लड्स इन। अबीले को रिप्लाई, अबीले उसको बोलने से पहले, अबीले उसका जवाब जब देती, उससे पहले ही दूसरी दादी ने कहा कि श्रीनगर में बहुत बड़ा सैलाब आ गया है। अब मैंने अपने किताब को बंद कर दिया। अब मुझे लगा कि वही बहुत बड़ा कोहराम आने वाला है, और यही हुआ। क्या बोल रही हो ला,
इन अ शॉक शी सेज, ला क्या बोल रही हो तुम? वेयर डिड यू हियर दिस न्यूज हाजरा? हाजरा तुमने ये खबर कहाँ से सुनी? तो वो कहने लगी कि मैंने रेलडी पे ये खबर सुनी। रेलडी मीन्स यानी कि हमारे उस खातून के लिए रेलडी मीन्स रेडियो को रेलडी कहती थी। वो कहती थी कि रेलडी पे मैंने खबर सुनी। एंड रेडियो को जिस तरह से वो रेलडी कहती थी, वल्ला नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस। तो वो क्या कहने लगी कि मुझे किसी ने इस बारे में बात नहीं की, ना ही मुझे बशीर ने भी इस बारे में बात की। अबीले बहुत परेशान हो गई और ये कहने लगी, तुम्हें मालूम है कि मेरे बेटे कैसे हैं? वो कोई भी बात मुझसे नहीं कहते, हमेशा मुझसे मेरी बातें छुपाते। तो अपने बेटों पे भी वो बरस पड़ी। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वो कहने लगी कि मैं नीचे जाऊंगी हजरा, अब मेरा दिल बड़ा जोरों से धड़क रहा है, अब मैं क्या करूंगी? अब मैं महसूस कर रहा हूं अपनी माँ की ईको की हर एक कदम की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। अब मुझे लगा कि हम लोगों पे मुसीबत टूट पड़ी है। आई थॉट एंड स्पेट डाउन। मैं नीचे बैठा और मैं सोचने लगा और मैं नीचे बैठ गया, लीपिंग अक्रॉस द स्टेयर्स। और मैं सीढ़ियों पे आराम से बैठ गया। The echo of Abhi's weak footsteps could soon be heard on the part of the staircase where I had been reading a few moments ago. तो मुझे क्या महसूस हुआ, जहाँ पहले मैं थोड़ी देर पहले मैं बैठा हुआ था, मुझे वहां पे मेरे अभी की पैरों की चलने की आवाज आ गई, कदमों की चलने की। As soon as she came down, जैसे ही वो सामने आ गई, वो बरस पड़ी मुझ पे। Did I not say you not to send रुखसाना to कश्मीर? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि रुखसाना को श्रीनगर नहीं भेजना, कश्मीर नहीं भेजना? बट किसी ने मेरी बातों का पे कोई तवज्जो नहीं दी। तो मैंने कहा कि तो फिर वहां पे मेरे काका थे, यानी कि मेरे बड़े भाई थे। तो उन्हें कहने लगे, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर? तो वो कहने लगे, श्रीनगर में सैलाब आ गए। अबीले वेव्ड हर हैंड्स इन एजिटेशन, इस तरह से हाथों को हिलाने लगी और कहने लगी, श्रीनगर में सैलाब आ गया है। सो व्हाट? कागा तंग आ गए बिल्कुल। वो क्या बोल, तो फिर आ गया तो आ गया, इसमें क्या है? ये बहुत बड़ा शहर है, सैलाब आते हैं, आंधियां आती हैं, आग लग जाता है, कोई नई बात नहीं है। एनफ एनफ आई हैव एनफ, शी प्लेस्ड हर इन। तो वो कहने के बस बस बस, तुम और मुझसे कुछ ज्यादा बातें मत करो, बस मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। तो अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों को अपने कानों पे रखती हैं कि, और उनकी आंखों से आंसुओं के झरने बहने लगते हैं। बहुत दिनों तक आबिले के दिमाग से वसवसा नहीं निकला और वो बहुत ही शांत हो गई, वो किसी से बात करने लगी। और तो उसने क्या किया, तो उसने कहा कि वो कागा के साथ श्रीनगर चली जाएगी ताकि रुखसाना को खुद देखे। वो तो फिर ऑन द वे रास्ते में उससे बड़ी ही सरदर्दी वगैरह और चक्कर और उल्टियां हो गई। और हमने रात करगिल में बिताई श्रीनगर जाने से पहले, और फिर श्रीनगर के लिए दूसरे दिन निकल गए। कागा सेड, अभी यू वर वरीड अबाउट रुखसाना। वो कहने लगा, अभी आप खामखा रुखसाना के बारे में परेशान थी। देखिए अब वो कितनी खुश और खुर्रम है, देखिए उसका चेहरा कितना ब्राइट हो गया है और उसके चेहरे कितने लाल हो गए, यानी कि कश्मीर की हवा पानी की वजह से वो कितनी खुश और खुर्रम और सेहतमंद और खूबसूरत हो गई है। अभी लिपट पड़ी रुखसाना से और जोर से बेजार होके रोने लगी, ज़ारो ज़ार रोने लगी। और 2 दिन हमने वहां पे गुजारे और रुखसाना ने हमें श्रीनगर का एक टूर भी करवाया। इसी दौरान अबीले को श्रीनगर का एक अबीले को कहने लगी थी, देखो कितना बड़ा एक शहर है हमारा, ये डल झील है, और फिर ये निशात बाग है, ये शालीमार बाग है, ये नेहरू पार्क है, और ये चार चिनार है। 4 दिन गुजर गए थे इस वाकये को, और 5वें दिन अभी ने फैसला कर लिया। फैसला क्या था कि अब मैं ले जाना चाहती हूँ। आई मिस द चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों को मिस कर रही हूँ, मैं अपनी डॉटर जमीला को मिस कर रही हूँ, मैं अपने पोती हलीमा को मिस कर रही हूँ, और मैं अपने छोटे से जावेद को मिस करती हूँ। तो कहानी को हम यहीं पे आज और तो ये कहानी इख्तिताम के करीब है। तो वो कह रही कि मैं अपने बच्चों को मिस कर रही हूँ। She insisted on this in such a manner that on the very same evening we had to purchase return to the tickets. देखिए कि किस तरह से वो परेशान थी रुखसाना के लिए, और कुछ दिन जब हो गए
तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को मिस कर रही हूँ, नहीं अब मैं उससे ज़्यादा दिन नहीं गुजार सकती हूँ। और उन्होंने इतना असरार किया कि हमें उसी शाम को टिकट खरीदनी पड़ी लेह की, और फिर हम अबीले के साथ वापस ले चले गए। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से अब्दुल गनी शेख साहब ने एक फैमिली की कहानी बजरिए एक ओल्ड एज खातून के किस खूबसूरत अंदाज में आप सब तक बयां किया है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस कहानी को 2-3 बार पढ़ें। एंड और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होता है। एंड I hope that you have enjoyed a lot from this short story, and you have learned somehow how to write a short story, and you should get inspiration from the writer because he himself is a Ladakhi in your own vicinity, Abdul Ghani Sheikh साहब। और उनके बारे में भी और जानने की कोशिश करें। इसी के साथ ये लेक्चर कंक्लूड होता है। खुदा हाफिज।